حاصل پور سے ہمارے بیورو چیف یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی حاصل پور میں بھی چیئرمین محمد وسیم کی ہدایت پر عبداللطیف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مشل برادری جلوس نکالا گیا۔ جلوس کی صدارت چیئرمین محمد وسیم، سوشل ویلفیئر آفیسر محمود الحسن، وائس چیئرمین ڈاکٹر فاروق احمد، صدر محمد عامر نے کی۔ پورے ملک کی طرح حاصل پور میں بھی عبداللطیف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آمد ربیع الاول کے حوالے سے مشل برادری جلوس نکالا گیا۔ جلوس کی قیادت جناب چیئرمین محمد وسیم، عبداللطیف فاؤنڈیشن، سوشل ویلفیئر آفیسر محمود الحسن، وائس چیئرمین ڈاکٹر فاروق احمد، صدر محمد عامر، نائب صدر محمد وقاص عرفان، جنرل سیکرٹری رئیس بٹی محمد عدیل، محمد عارف اور عبداللطیف فاؤنڈیشن کی ٹیم اور عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد اس جلوس میں شریک تھی۔ جلوس میزائل چوک سے ہوتا ہوا بلدیہ ہال میں اختتام پذیر ہوا۔ بلدیہ میں محفل نعت پاک کا اہتمام کیا گیا تھا۔ چیئرمین محمد وسیم نے تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ وائس چیئرمین ڈاکٹر فاروق احمد نے ملک و قوم کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ بہاولپور سے اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ سے معروف روحانی شخصیت پیر سید محمد شاہ جرار کی دینی درسگاہ جامعہ قاسمیہ اوچ شریف میں ملک پاکستان کی تاریخ ساخت محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے علماء کرام، ثناءخوان، سیاسی سماجی مریدین، متعلقین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تمام مہمانوں کا محفل میں تشریف آوری پر پرتپاک استقبال کیا گیا، جس میں پیر سید الرحمان مہندی، پیر عبدالقدوس نقشبندی، نواب عاصم جاوید عباسی، چودھری سعد مسعود اور دیگر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ختم نبوت کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ اس موقع پر عقیدہ ختم نبوت کا پرچار بلند کرنے پر آواز بننے والے تمام مسالک کے جید علماء کرام کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بعد ازاں عالمی شہرت یافتہ ثناءخوان رسول شاہد عمران عارفی، رانا عثمان قصوری، ظفر شہزاد گجر اور دیگر نے گلہائے عقیدت کے خوبصورت پھول بکھیر کر محفل کو مزید چار چاند لگا دیے۔ آخر میں پیر سید محمد شاہ جرار نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ شیخوپورہ میں دو رکشوں میں تصادم، حادثہ بتی چوک کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں 4 افراد زخمی۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے تمام زخمیوں کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد ہسپتال شفٹ کر دیا۔ زخمی افراد میں مسرت بی بی 36 سال، سریا 36 سال، بوٹا ولد منیر 37 سال اور بوٹا ولد صاحب 40 سال شامل ہیں۔ بیورو چیف ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق یوم دفاع کے موقع پر پریس کلب رجسٹرڈ پاڑیاں والا کا وفد صدر پریس کلب پاڑیاں والا نذیر شراز کی قیادت میں 1965 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو میجر راجہ عزیز بٹی کی قبر مبارک پر لادیاں حاضری دی اور قبر مبارک پر پھول چڑھانے کے بعد فاتح خوانی کرتے ہوئے میجر راجہ عزیز بٹی شہید کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور اس موقع پر وفد میں احسان نازش، مرزا فیاض رسول، محمد خالد مرزا، عدیل چودھری، نعیم رضا بٹی اور محمد گلزار طاہر بھی شامل تھے۔ سعودی عرب میں یوم دفاع پاکستان کی تقریب، جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی خصوصی شرکت۔ سعودی عرب دارالحکومت ریاض میں 59ویں یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے خصوصی شرکت کی۔ اس تقریب میں سعودی عرب کے اہم شخصیات، مختلف ممالک کے سفارتکار اور ملٹری اتاشی بھی شریک تھے۔ پاکستانی سفیر احمد فاروق اور ملٹری اتاشی بریگیڈیئر محمد عاصم نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیئر محمد عاصم نے کہا کہ یوم دفاع پاکستان ایک یادگار دن ہے جب پاک فوج نے اپنی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت سے دشمن کو ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کی بدولت جانی جاتی ہے۔ پاک سعودی عسکری تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے۔ پاکستانی سفیر احمد فاروق نے اپنے خطاب میں کہا کہ 6 ستمبر کو پاکستان نے اپنے کئی گنا بڑے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے امن کا خواہاں رہا ہے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے ذریعے خطے میں امن کے فروغ پر زور دے رہا ہے۔ پنواکل سے لالا جبار مغل جرنلسٹ پاور انٹرنیشنل یونین آف پاکستان رجسٹرڈ کے مرکزی صدر عبدالقدوس مغل صحافیوں کے حقوق مسائل کے حل کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ملکی JPIU واحد تنظیم جرنلسٹ پاور انٹرنیشنل یونین آف پاکستان ورکرز صحافیوں کے حقوق کی علم بردار تنظیم ہے۔ یہ بات نیو سٹی پریس کلب رانا محمد ریحان بانی چیئرمین ایوان صحافت دریا خان ضلع بکر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ جرنلسٹ پاور انٹرنیشنل
यूनियन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड के मरकजी सदर अब्दुल कदूस मुगल सहाफ़ी बरादरी के महबूब लीडर हैं, एक नाडर, दलेर और जरूरतमंद इंसान हैं और जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड के प्लेटफार्म से सहाफ़ियों के इनफरादी और इज्तमाई मसाइल के हल के लिए हमा वक्त सरगर्दान रहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड इस वक्त सहाफ़ियों के लिए शजर सायादार बन चुकी है, जिसके साय से मुल्क भर के सहाफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बहावलपुर से अजमल जबेर की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमदपुर शर्किया के तहसील सदर माहिर कानून दान हाफिज मुजफ्फर करीम मुगल जलसागाह में पहुंचकर अपना एक वीडियो बयान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि संगजानी जलसे में अवाम का ठाठे मारता समंदर ने शिरकत करके तमाम जुलूसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे साबित होता है कि मुल्क की 25 करोड़ अवाम अपने महबूब कायद इमरान खान को मुल्क का वज़ीर आज़म देखना चाहती है, जिसकी रहाई के लिए उनकी एक कॉल पर बाहर निकली मौजूदा हुकूमत ने अपने नाकाम पॉलिसियों के बायस अवाम का खून चूस रही है और अवाम पर टैक्स का बोझ डालकर गरीब के मुंह से एक वक्त का नवाला भी छीन लिया है। मजीद कहा कि इमरान खान के दौर में रोज़गार आम था, हर घराना सेहत कार्ड पर अपना बेहतरीन इलाज करा रहा था, लंगर मुसाफिर खाना बनाकर गरीब को इज्जत दी, मुल्क में एक निसाब तलीम को आम किया, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। मगर मौजूदा हुकूमत ने साजिश के तहत मुल्क की 25 करोड़ अवाम के मैंडेट को चोरी करके ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर मुसल्लत होकर नाम नहाद मनगढ़ंत मुकदमात बनाकर इमरान खान को जेल में डाल दिया और डील के जरिए मुल्क से बदर होने की शर्त रख कर रिहाई की पेशकश की। मगर मेरे कायद इमरान खान ने अपनी रिहाई को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वो ये जदोजहद अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे बल्कि मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती और आने वाली नस्लों की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, जिसकी खातिर उन्होंने कैद बर्दाश्त की 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया है मगर डील कबूल नहीं की। एक से बढ़कर एक मुकदमात बना रहे हैं मगर अल्लाह ताला मेरे महबूब कायद के साथ है, जिसे अदलिया से इंसाफ मिल रहा है, जिसकी बदौलत वो एक एक करके केस से बरी होता चला आ रहा है। वो दिन अब दूर नहीं जब इमरान खान जेल से रहा होकर मुल्क का वज़ीर आज़म बनकर मुल्क को दरपेश मसाइल से निकाल कर मुल्क को रियासत मदीना बनाएंगे। जलसागाह में खूब नारे लगाए, कौन बचाएगा। इंतजामिया की गफलत के पेश नज़र करोड़ लालीसन गंदगी के ढेरों और आलूदा पानी के तालाब का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह कूड़ा करकट और सेवरेज का पानी जमा है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से नोटिस लेकर सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। पुलिस छापे मारती रही, आजम अली चौधरी एडवोकेट अपने साथियों समेत चमका देकर इस्लामाबाद जलसागाह पहुंच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई उम्मीदवार आजम अली चौधरी एडवोकेट साथियों समेत चमका देकर इस्लामाबाद जलसागाह पहुंच गए। आजम अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि जुल्म की रात खत्म होने को है। कप्तान के टाइगर पुरअमन और यकीन का अमल रखते हुए मुत्तहिद हैं और कप्तान के विजन के लिए जदोजहद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं आजम अली चौधरी एडवोकेट जलसागाह से ONU से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त जलसागाह में मौजूद हूँ और हारूनाबाद से, खाटा से और बहावलनगर से निकले हुए काफले आहिस्ता आहिस्ता जलसागाह में पहुँच रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पे इस वक्त रात के इस वक्त आप देख सकते हैं कि बहुत लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, इस जलसागाह में पहुँच रही है। देख रहे हैं रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक मेले का समा है और सब लोग बड़े ज़ौक़ से, शौक़ से, बड़े जोश से, बलबले से अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए, अपने लीडर की रिहाई के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इंतज़ामिया ने यहाँ पे जो जगह दी है, मुख्तस की है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जलसे के हालात हैं, ये जगह के हालात हैं जो बार बार हमें दी गई है। ये सामने मेरे बिल्कुल स्टेज है और ये जनाब हालात है यहाँ पे, जहाँ पे जो जगह प्रोवाइड की गई है, ये जगह है। लेकिन ये चीज़ें हमारे अज़म को ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि ऐसी चीज़ें हमारे हौसले को और बढ़ाती हैं। जितनी ज़्यादा मुश्किलें आप पे करोगे, जितना ज़्यादा तंग करोगे, इंशाअल्लाह PTI उतनी बढ़ेगी। लोगों के काफ़िले, ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि PTI हकीकत है, PTI हकीकत रहेगी। इमरान खान, PTI और पाकिस्तान इकट्ठे चलेंगे। बहुत शुक्रिया।
हरून आबाद से अबर शामिल करते हैं तहफ़्फ़ुज़ हतमी नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस की तारीखी कामयाबी इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान में कुरान सुन्नत से मुतसादम कोई निज़ाम नहीं चल सकता। अवाम ने खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम को नाफिज करने का फ़ैसला सुना दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक़ उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने मीनार पाकिस्तान पर ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, पुरअमन जलसे एहतजाज अवाम और सियासी जमातों का आइनी, सियासी और जमहूरी हक है। इस्लामाबाद के गूंगे बहरे मफादात में गर्क हुक्मरान अवाम से जीने सांस लेने का हक भी छीन ले और अवाम को इस हक तलफी पर एहतजाज भी ना करने दें तो ऐसे काले आमराना जाबराना कानून की कोई हैसियत नहीं होगी। मुल्क गरीब है तो गुर्बत भी तकसीम हो, ये नहीं हो सकता कि अवाम खुदकुशियाँ करे, भूख नंग और अफलास का शिकार हों और गिरा शर्फिया याशियाँ करता फिरे। ये अब अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। IPPs कोई मुकद्दस गाइड IPPs की लूट मार के खिलाफ अवाम में मौजूद शदीद गमो गुस्से का लावा अब फटने को हो। IPPs सिर्फ अपने मफाद नहीं, सार्फिन के मफाद और इनकी कुव्वत खरीद की सकत को भी देखें और समझें, वरना अवामी एहतजाज का सैलाब इन्हें बहा ले जाएगा। अवाम के जानो माल, इज़्ज़त, रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमतें नाकाम और अवाम से टैक्स वसूली का अपना आइनी हक ख़त्म कर रही है। हरून आबाद से अबर शामिल करते हैं फार्म 47 से मुसल्लत हुक्मरानों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, ये अवामी हमायत से नहीं लाए गए हैं। इनके पास किए गए एक्ट की कोई हैसियत नहीं। पूरे मुल्क में बिजली का यकसां टैरिफ लागू किया जाए। IMF का दबाव है तो हुक्मरान कौमी आमदन के जरिए जायज़ तरीके से बढ़ाएं। अवाम का खून क्यों निचोड़ा जा रहा है? हरून आबाद की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत और अंजुमन हसीनिया नूरुल अनिया के साबिक सदर सैयद मज़हर अब्बास गिलानी ने कहा है कि जगीरदारों पर टैक्स लगाया जाए, IPPs के कैपेसिटी चार्जेस खत्म किए जाएं, हुक्मरान अपनी अय्याशियाँ और मराद कम करें। हुकूमत हालात बेहतर समत में लेकर जाना चाहती है तो इसे अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। अमेरिका को मौका मिला और वो पाकिस्तान में घुस गया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदा गालिबाज की रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगने से एक शख्स शदीद जख्मी। फायरिंग का वाक़या मदीना स्ट्रीट बिलमकाम हाउसिंग कॉलोनी पेश आया। कॉलर के मुताबिक फायरिंग की आवाज़ के बाद बाहर निकल कर देखा तो एक शख्स जख्मी पड़ा था। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने शदीद जख्मी शख्स को फर्स्ट एड फ्राहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी होने वाले तकरीबन 27 साल शख्स की शिनाख्त ना हो सकी। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मरक रिजवान और की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बक्कर ने कहा है कि आबद हुसैन नकवी असिस्टेंट जैसे एहलकार किसी भी महकमे के माथे का झूमर होते हैं। हुसैन नकवी असिस्टेंट का महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बक्कर से 1985 से शुरू होने वाला 38 साल 8 माह का यादगार सफ़र आज मुकम्मल हो गया। आबद हसन नकवी असिस्टेंट का महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बक्कर से 1985 से शुरू होने वाला 38 साल 8 माह का यादगार सफ़र आज मुकम्मल हो गया। आबद हसन नकवी ने मुख्तलिफ दफातर में फ़राइज़ अदा किए और कोशिश की कि महकमा और सरबराह इदारे का सरबुलंद रखे। मलक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बक्कर का ऑफिसर की रिटायरमेंट पर तकरीब से खिताब। महकमा सोशल वेलफेयर के जुमला अफसरान और स्टाफ की तरफ से पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनाकाद किया गया और ऑफिसर की खिदमत पर शानदार हराज तहसीन पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि ऑफिसर मज़कूरा ने DC ऑफिस बक्खर में भी 17 साल फ़राइज़ अंजाम दिए और हेड क्लर्क जनरल, डिस्ट्रिक्ट नाज़र और दीगर ब्रांचों में तैनात रहे। अलावाजी 2017 ta 2022 दफ्तर डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सरगोदा में ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी तैनात रहे। ऑफिसर मज़कूरा का शुमार ज़िले हुकूमत इंतहाई काबिल, मेहनती और तजर्बाकार एहलकार में होता है। शुरका तकरीब ने एहलकार को तोहफ़े पेश किए और आइंदा ज़िंदगी के लिए दुआएं और नेक तमन्नों का इजहार किया। आखिर में आबद नकवी साहब ने जुमला शुरका और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस IT डिपार्टमेंट अवामी खिदमत के अतराफ में ISO सर्टिफिकेट जारी। ISO सर्टिफिकेट के म्यार के लवाजमात पर पूरा उतरना सिटी ट्रैफिक पुलिस के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं। राब्ता ऐप, ड्राइविंग लाइसेंस, ई-चलान, वेबसाइट, HRMS, कंप्यूटराइज ड्यूटी रोस्टर्स, दिगर IT's खिदमत जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग होने पर सर्टिफिकेट जारी किया गया है। वाज़ेह रहे कि ISO CRC सर्टिफिकेट सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर को ऑफिस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक सार्जेंट ट्रेनिंग और अवामी आगाही मुहिम में पहले भी जारी किया गया था।
ISO सर्टिफिकेट सूबे में सिर्फ सिटी ट्रैफिक पुलिस को जारी किया गया, जो पेशावर ट्रैफिक पुलिस के इस्तेदादकार और जिद्दत समेत शहरियों की खिदमत का इतराफ़। इस एजाज़ से सिटी ट्रैफिक पुलिस KPK पुलिस का पहला इंटरनेशनली सर्टिफाइड इदारा बन गया है। IG खैबर पख्तूनख्वा अतर हयात खान की हदायत पर बैनुल अक़वामी मेयार को बरकरार रखते हुए मज़ीद बेहतर अंदाज में शहरियों को खिदमत फराहम करेंगे। CTO सऊद खान आलमी मुबसर इदारे की जानब से जारी सर्टिफिकेट के बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि मज़ीद एहसन तरीके से जारी खिदमत के तसलसल को बरकरार रखा जा सके। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अमेर हसन अमान चौक। आज़म नेशनल लिटरेसी डे के हवाले एक बेहतरीन सेमिनार मुनक्कद हुआ। सेमिनार में नॉन फार्मल स्कूल्स के बच्चों, उस्ताद, फील्ड स्टाफ और कम्युनिटी के लोगों ने शिरकत की। इस महफिल को सजाने में कोऑर्डिनेटर लिटरेसी महर मोहम्मद अनवर थिंड, TLO मोहतरमा मैडम काबिश और DEO लिटरेसी मैडम दुरे शहवार खूब किरदार अदा किया। महफिल हाजा के मेहमान हुसूसी CEO महकमा तलीम मोहतरम शौकत शेरवानी के तकरीब के अहतमाम पर मेहमान हुसूसी का बेहतरीन खिताब और मेहमान हुसूसी ने नॉन फार्मल उस्ताद और महकमे की मेहनत को खूब सराहा। कसूर में पुलिस मुकाबले की रिपोर्ट मनसब अली भट्टी कर रहे हैं। कसूर के नवाही पुलिस थाना खड़ियां के इलाके रेलवे फाटक के करीब पुलिस मुकाबले में संगीन वारदातों में मतूब इंतहाई खतरनाक 2 डाकू को जख्मी हालत में अपने तीसरे साथी समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस तर्जमान साजिद हसन अंसारी के मुताबिक जख्मी डाकुओं की शिनाख्त साजिद और इशफाक, जबकि तीसरे डाकू की एहसान सकनाई खड़ियां के नामों से हुई। तीनों डाकुओं ने कुछ अर्सा कबल दिन दहाड़े खड़ियां में शदीद फायरिंग करके ताजर से 10 लाख रुपए छीनने की वारदात की थी। लतीफ नामी शहरी ने 15 पर पुलिस को इतला दी। 3 डाकू किला गंजा पुल से नकदी 50,000 रुपए छीन कर फरार हो गए हैं, जिस पर थाना खड़ियां पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए रेलवे फाटक के करीब नाकाबंदी की, जबकि डाकुओं ने पुलिस नाकाबंदी को देखकर मुख्तलिफ एतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस पार्टी ने भी हक हफाजत खुद अरादियत के तहत हवाई फायरिंग की और मुलजमान की तरफ से फायरिंग रुकने पर 2 डाकू जख्मी हालत में जमीन पर गिरे पड़े थे, जबकि तीसरे को भागते हुए गिरफ्तार किया गया और मुलजमान के कब्जे से छीनी गई रकम 50,000 रुपए और पिस्टल भी बरामद किया गया है, जबकि मुलजमान की मजीद तफ्तीश जारी है।